So, first of all, welcome to our channel. Hi Zoya, how are you? I'm good, sir. How are you? Hope everything I'm is well. fine. Yeah, everything's fine inside from last 25 days, not going out. Oh, How's that's great. everyone? Yeah, Everyone is good, sir. By God's grace. yes, tell me. Okay, so first of all, congratulations. Ramyuk का trailer out हो चुका है and it's trending. How does it feel and what sort of response you're getting from your fans? This is my first thing in the Bollywood. I'm working in down south from last 6 years, five and a half years, and I've done some 39, 40 Yeah. films. So I'm happy, I was waiting for the right call, right time, right script, right director, and right character. आई थिंक रावण से बड़ा कैरेक्टर तो कुछ नहीं है संसार में, रावण से बड़ा विलन तो नहीं है कोई. सो आई एम हैप्पी. जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ कल एंड मतलब ट्रेलर रिलीज होने के बाद शाम तक आई गॉट सम 450-500 मैसेजेस ऑन माय डीएम. वाओ. एंड साउथ से जो जिनके साथ मैंने काम किया है, दे कॉल्ड मी एंड दे सेड कबीर सर, you didn't tell us that you are doing Ramyug and you're coming as Ravan. So they were pretty much impressed and they were happy with the look. जो attire Kunal sir ने मुझे दिया है, that headgear and see it's a modernized Ramayana. So कहानी वही है, रामयुग की कहानी वही है, but थोड़ा स्टाइलाइज तरीके से बनाई गई है. So and the fans तो they are happy to see me because क्या है कि अभी तक उन लोगों ने मुझे डबिंग मूवीज में देखा है कि साउथ की मूवीज डब्ड होके टीवी पर चल रही है, but now they gonna hear my own voice and कि अब हमारा जो विलन था, like they call me कबीर सर, कबीर भैया, कबीर सर, now he is coming to Bollywood now. So I'm happy. I'm excited for 6th May कि अभी all episodes will come out on 6th May and happy यार. My family is very happy कि you are coming to Bollywood now. So ये वो खुशी है कि you cannot describe in words. Yeah. आप समझ सकते हो. Okay, so we like to know कि how this journey started, how Ramyuk journey started. आपको कैसे ऑफर आया and have you like took time to decide कि मुझे करना चाहिए या नहीं, या it was a sudden decision? See, रामयुग से पहले भी मुझे, like I said, I was working down south for like 5 years. ऐसा नहीं कि मुझे calls नहीं आते थे, calls आते थे फिल्मों के, but it was my choice कि मुझे अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है. और क्या होता है कि मैं जहां तक सोचता हूँ कि पहली फिल्म आपकी ऐसी होनी चाहिए जो दुनिया में दुनिया के दिलों में घर कर जाए, जो आप पहला कैरेक्टर करोगे. जैसे मेरे साथ क्या, तेलुगु फिल्म मैंने की तो मेरी पहली फिल्म बहुत बड़ी थी, तमिल बहुत बड़ी फिल्म थी. जो मेरा आई एम वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड, ऑल आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरी जिस इंडस्ट्री में रीजन में मैं काम करने गया वहां पर हर मेरा डेब्यू बहुत बड़ा था. तो आई वाज लुकिंग फॉर अ गुड फिल्म, बिग फिल्म एंड अ ग्रैंड डेब्यू कि यार कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो जैसे रामयुग मुझे मिली, so they called me for a look test. I went there. They didn't disclose that it's a Ravan character. से जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं ये बहुत सरप्राइज बना के रखते हैं कि लास्ट तक बताते नहीं है. They will take your look test and they will tell कि okay, go and meet this director. So director only tell you कि okay, this is for Ramayana, this is the character. So जोगी भाई साहब took my look test and that time I was getting calls. मुझे 2-3 बड़ी फिल्मों की calls आई थी, but where मेरा I always go with my gut feeling. तो उससे पहले मुझे कम से कम 14 या 15 फिल्मों के कॉल्स आए थे रामयुग से पहले. लाइक विद इन 2 years मुझे कुछ 14-15 फिल्मों के कॉल आए थे रामयुग से पहले. 2019 में शूट हुई थी रामयुग स्टार्टिंग में. सो उससे पहले मुझे 14-15 के कॉल आए थे कुछ फिल्म्स के. तो यहाँ से आवाज नहीं आती थी कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. सो मैं हमेशा पास. बट जब रामयुग आई, सो आई वेंट एंड मेट कुणाल एंड देन कुणाल सेड, Kabir, we really like your look and we saw these films in South and I think you are the right guy for Ravan. And when he said Ravan, so I hugged him and I felt happy and होता ना जो खुशी की आप अंदर अंदर बहुत खुश होते हो कि एक थोड़ा सा कि क्या बोलूं मैं, अब थोड़ा सा आप हाथ रब करते हो, थैंक यू सो मच, एक स्माइल बदल जाती है आपकी. I remember I was having coffee and Kunal sir कट टू कट बात करते हैं. So Kunal sir ने बोला कि you are the person and I think my team liked your work, your Jill movie and your Vedalam look, they loved it and जो decision हमने लिया है कि आप you should play the Ravan. So Kunal sir ने ये बोला and Kunal sir चले गए and then मेरी कॉफी मेरे हाथ में है and I'm having my coffee and Kunal sir कहते okay guys, you guys continue. तो Puneet, who's become my very good friend now, associate director of the film Ramyug,
So he's from Punjab, I'm from Haryana, so Punjab Haryana. So so Yeah. we were discussing that, Kabir, we saw this film and we saw this beard look, and so we told ki sir, this is the guy. And I said thank you very much, and then I started working on Ravan. Then मैं उसके बाद फिर उस फिल्म पे कैरेक्टर पे मैंने काम करना शुरू किया. So Wow. that वो चीज इसका मैंने वेट किया. एंड आई थिंक रावण एक ऐसा कैरेक्टर है जोया जिसको हर एक्टर करना चाहेगा. एंड दैट्स माय ड्रीम रोल. No doubt. संसार का सबसे बड़ा विलन, दैट्स माय ड्रीम रोल. Wow. ओके, कभी सर लाइक टू नो कि क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े रावण का किरदार निभाते हुए? व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप यू हैव डन, और क्या आपने रामानंद सागर जी का रामायण पूरा देखा था? एनी सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप यू हैव डन बिफोर लाइक शूटिंग? सी हमारी रीडिंग तो होती थी. आई started taking this sword fighting classes because जो last में climax जो fight है, it's a beautiful climax between me and Digant. So श्री राम और रावण के बीच में बहुत अच्छा climax shoot हुआ है मॉरिशस में. So उसके लिए वो चीज स्टार्ट की. पैरेलल I was very hectic. मेरा जो schedule था उस टाइम वो इतना hectic था जो है जी कि I was shooting for 5 films that time. और मेरी पैरेलली एक पहलवान मूवी है सुदीप सर की, जिसमें I was playing opposite to him. So उसकी बॉक्सिंग क्लासेस चल रही थी. Then I was मैं अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान दे रहा था, क्योंकि बॉक्सर का आपको पता है कि बॉक्सर बस नीचे शॉर्ट्स पहनता है एंड देन पूरा ऊपर. तो वो मैंने उसके लिए बहुत तैयारी की थी. मैं पहलवान की तैयारी कर रहा था, उसके बीच मुझे रामयुग आई. उसके बाद उसके बीच में मुझे डेब्यू का कॉल आया, जो रामयुग का कॉल आया. सो मैं समाव अभी ये हो गया था कि यार शिट, आई हैव टू फोकस ऑन पहलवान ऑल्सो एंड आई हैव टू फोकस ऑन रामयुग ऑल्सो. एंड सी रामयुग इज माई डेब्यू. सो देन आई स्टार्टेड स्वॉर्ड क्लासेस एंड बॉक्सिंग क्लासेस मेरी चल रही हैं, बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ. देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट रावण साहित्य. एक बुक है रावण के बारे में, जहाँ पूरी कहानी पता लग जाएगा आपको. वो कौन थे, कहाँ से कैसे जन्म हुआ, उनके माता पितर कौन थे, और उनमें इतनी शक्तियां कैसे आई, उन्होंने क्या क्या यज्ञ तप वो किया. सो वो बुक पढ़नी शुरू की मैंने. देन सीन्स परफॉर्म करना शुरू किया. रामानंद सागर की मैंने एक बार पूरे रामायण देखी कि उस टाइम सर ने क्या, क्योंकि हमने तो बचपन में देखी थी यार, जो वो कहानी जो रामानंद सागर की जो रावण जिन्होंने प्ले किया था, जो वो हमने बचपन में देखी थी. तो उसके बाद बीच में कभी वो तो आप दोबारा लास्ट कोविड में, लास्ट पैंडेमिक में दोबारा डीडी चैनल ने दिखाना शुरू किया. सो वो चीज देखी. देन अपनी कुछ इम्प्रोवाइज किया, अपने अंदर किताबें पढ़ी एंड यूट्यूब पे सर्च किया. श्रीलंका में लोग जो रावण के बारे में बताते थे, तो वो चीजें पढ़ी, तो चीजें हुई यार. तो मैंने सारी चीजें मैनेज की. एंड आई रिमेम्बर कि जब रामायण की शूटिंग, रामयुग की शूटिंग होती मॉरिशस में, तो मैं एक सीन में फेंट हो गया था. मैं बेहोश हो गया था एक सीन में. बिकॉज आई सेड कि मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था एंड मेरा स्केड्यूल इतना हेक्टिक था कि मैं चेन्नई में हूँ, मेरे को एक दिन का रेस्ट, फिर मैं बैंगलोर चला गया, फिर मैं हिंदी फिल्म की शूट कर रहा हूँ, देन मैं मॉरिशस. तो क्या टेम्परेचर ऊपर नीचे होता, जो वेदर था वो सब ऊपर नीचे हो रहा था. एंड मोर ओवर मेरा जिसके लिए मैंने अपनी फिल्म की बॉडी तैयार की थी, जो फिजिक तैयार की थी, और पहलवान के लिए तैयार की थी, और बीच में रामयुग एंट्री होगी रामयुग की. सो और जो मेरा जो पहलवान का क्लाइमेक्स था, वो बहुत मैसिव क्लाइमेक्स था, जिसके लिए हॉलीवुड से एक्शन डायरेक्टर आया था. इट वाज अ वेरी बिग फिल्म, पैन इंडिया फिल्म थी वो. और वो क्लाइमेक्स इन्होंने क्या शिफ्ट कर दिया, पोस्टपोन. अब मैं रामयुग के मॉरिशस में शूट कर रहा हूँ, और मेरे दिमाग में क्या है कि पहलवान का क्लाइमेक्स शूट हो गया, पोस्टपोन हो गया अभी आगे. एंड आई हैड टू मेंटेन माय जो बॉडी, मैंने जिसके लिए 4 महीने देखे, इतनी तैयारी की है बॉडी की, फिजिक जो मैंने एक जो लीन बॉक्सर होता है. बिकॉज सी मैं किरदार निभाता हूँ जो है जी, मैं उनको बहुत अच्छे से लेता हूँ, मैं उनको तैयार करता हूँ. सो एक बॉक्सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ रॉकी. तो आफ्टर वॉचिंग रॉकी, मैं एक कैरेक्टर करना चाहता जिसमें बॉक्सर हूँ, और मुझे इतनी जल्दी मिलेगा जिसमें लीड विलन, एंड ही इज प्लेइंग द ड्रागो ऑफ पार्ट 3, आई थिंक पार्ट 3 पार्ट 4. तो दैट फ्रेंच गाय. सो वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए मेरे दिमाग में मैं रामयुग शूट कर रहा हूँ, एंड आई वाज टेकिंग ओनली प्रोटीन मील्स. सो आई वाज नॉट ईटिंग कार्ब्स एंड ऑल. सो जैसे ही श्री राम ने मुझे तीर मारा, दिगंत ने मुझे तीर मारा मेरी नाभि में नीचे, सो मैंने रिएक्शन लिया. तो वो जो रिएक्शन था वो कन्वर्ट हो गया मतलब मैं, बिकॉज सी मेरा माइंड कहाँ था, पहलवान के क्लाइमेक्स में, कि मुझे इतना खाना है, मुझे इतनी मील्स ले लिया, मुझे इतना करना है. सो वो क्या अंदर वीकनेस आ गई, एंड देन वो जब तीर लगा तो मैं
गिर गया। एंड एवरीबॉडी माइक में कुणाल सर था कि अरे यार कबीर गिरना नहीं था। उनको क्या पता कि लड़का हमारा राउंड बेहोश हो गया। तो इन सेकंड्स एंड दे वो भाग कर आए सब लोग, एंड देन उन्होंने वाटर वाटर कुछ स्प्लिट किया उस पे। तो दे सेड व्हाट हैपेंड कबीर, आई सेड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो आई थिंक 10-15 सेकंड्स का रहा होगा बेहोशी जो थी मेरे अंदर। तो उन्होंने बोला कि व्हाट यू नॉट ईटिंग। सो किन्होंने बताया कि कबीर इज ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज मील, स्किप कर रहा है, ही इज ओनली टेकिंग प्रोटीन। तो फिर नेक्स्ट डे से आई स्टार्टेड टेकिंग कार्ब्स, बिकॉज वहां पर गर्मी बहुत थी यार, 48 डिग्री टेम्परेचर था जब हम शूट कर रहे थे मॉरिशस में। सो थैंक गॉड वी वो माउंटेन का हम टॉप पे शूट कर रहे थे उस दिन, जो क्लाइमेक्स शूट था। थैंक गॉड वो कॉर्नर नहीं था माउंटेन, अगर वो कॉर्नर होता तो मैं सीधा नीचे। तो ऐसी लैंग्वेज चीजें कहीं ना कहीं आपको लगा था कि लैंग्वेज में थोड़ा करना पड़ा काम? मैंने व्हाट आई वाज डूइंग दीस डेज, जब दोस डेज कि मैं अपने साथ हिंदी और संस्कृत की बुक रखता था। तो मैं क्या, वो स्लैंग मेरे से छूटे ना, हिंदी एंड जो तेलुगु थी, जैसे जो संस्कृत वर्ड थोड़े थोड़े यूज होते हैं हमारे रामायण में, अगर आप देखेंगे रामयुग में तो कुछ वर्ड हमारे संस्कृत से लिए गए हैं। सो वो चीज मैं पढ़ता रहता था ताकि जब मैं डायलॉग डिलीवरी करूं वहां पर तो वो सब चीजें फिट बैठनी चाहिए। हालांकि डबिंग होती है बाद में, बट स्टिल वो एवरीथिंग शुड सिंक्रोनाइज। सो ऐसे मैंने चीजें की। जैसे मैं तेलुगु भी, मैं अगर मैं वहां भी बिजी हूं मैं, सो मैं हमेशा अपने साथ हिंदी की बुक रखता हूं मैं, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कल क्या कॉल आएगा। लाइक मैं हर दिन अपनी मार्शल आर्ट की तैयारी करता हूँ, मैं बॉक्सिंग नहीं, मैं स्टिल बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता हूँ। यू नेवर नो कि एन एक्टर हैज टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। सी यू नेवर नो कि कल आपके पास क्या कॉल आएगा, एंड यू शुड बी रेडी। अगर मैं छोड़ दूं कि यार यार पैंडेमिक है तो अभी तो सब चीजें बंद हैं, तो यू नेवर नो। Like Abhi, I recently took one narration. It's a hardcore action film where I have a combat fight with the hero. So, so, so मुझे हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो उस टाइम अभी भी मैं शूट करता हूँ तो I I kept this book with me. Always keeps this book with me. हिंदी एंड तुगलक हो गया, उर्दू, ताकि वो जो जुबान है वो आपकी साफ रहे। That's great. Okay, कबीर सर, कास्ट बहुत अच्छी है जिसका मैम भी है इस राम युग में। So how was the bond जब शूट हो रहा था? कुछ थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह भी होती थी सेट पे? Masti, see, I know Digant because Digant belongs to Kannada family, Kannada industry, and I have done some 9 to 10 films. And how I knew Digant before the Ramyug, I supposed to play for CCL from Karnataka, that cricket league, celebrity cricket league. But मेरे उंगली में फ्रैक्चर हो गया था, and Digant was playing for Karnataka, Bangalore team. And I was supposed to play from Bangalore team. So there we met, me and Digant met, and मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, एंड देन मुझे वापस बॉम्बे आना पड़ा। तो मेरी मुलाकात वहां हुई थी। सो किसने ये कहानी लिखी थी कि he will play Ram and I'll play Ravan, and we won. But I know since my modeling days, we won, और मैंने कुछ काम किया साथ में। लक्ष्मण को मैं नहीं जानता, सीता को मैं नहीं जानता, बट हमारा बॉन्डिंग अच्छा था। सी वी वर न्यू, मैं तो साउथ में काम कर रहा था, बट आई वाज न्यू फॉर टू बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड सब लोग नहीं थे। तो ऐसा किसी में मुझे कोई एक अलग टाइप का जो एक अहंकार होता है या घमंड होता है किसी में कि भाई तू वहां काम कर रहा है, या तू उस इंडस्ट्री का बंदा है, तू टीवी का बंदा है, या आप थिएटर वाले हो, या कुणाल सर के साथ काम करेंगे, मुझे कभी नहीं लगा। तो वी यूज्ड टू चिल आउट सीन। जब रिहर्स करते थे हम सब बैठते थे, जो मेरे और राम की। सो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार कि नहीं यार मैं अभी 2 टेक दूंगा या 3 टेक दूंगा या 1 टेक दूंगा, या सो हमेशा बहुत चिल्ड आउट तरीके से काम हुआ। एंड इवन वी यूज्ड टू डू पार्टीज आल्सो। जैसे कल ऑफ होता था, सो कुणाल सर का जो फ्लैट वो था, अपार्टमेंट था जो उस होटल में, सो वो टेरिस था ओपन। तो वी यूज्ड टू गो देयर, एंड ही सर यूज्ड टू ग्रुप बना रखा था हमने। तो सर कहते आ जाओ यार बैठते हैं, थोड़ा कॉफी वॉफी पीते साथ में। तो वो हंसी मजाक भी चलता था। सेम विद प्रोड्यूसर्स, निहारिका मैम, रवीना कोहली मैम। तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि that's my first film, और मैं कुणाल सर, he is a big director because he has given some good cinema, फना, हम तुम। so लगा नहीं मुझे कि यार मतलब बड़े डायरेक्टर हैं, मैं थोड़ा नर्वस। जब मैं पहली बार मीटिंग के लिए गया था, that time I was little bit nervous, but जब उन्होंने बोला रावण you are playing, and he introduced me to the team next meeting में कि meet our रावण, कबीर द्वंद सिंह। so everybody was like, hi कबीर, hi कबीर, hi कबीर। so वो जो था ना, वो शूटिंग से पहले वो खत्म हो चुका था।
क्योंकि हमने 2 बार रीडिंग भी की थी साथ में. आई वेंट टू हिज ऑफिस एंड आई टोल्ड कुणाल सर, आई सेड सर आई वांट टू रीड विद यू, आई वांट रीडिंग विद यू. सो देन मैं अपनी जो मेरे पास स्क्रिप्ट थी मेरी, तो रावण के मैंने डायलॉग वो सब किया एंड देन केम आउट रियली वेल. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यार. अच्छी सपोर्टिव टीम थी. डीओपी जो थे, एसोसिएट डायरेक्टर जो थे, मनीष भाई, पुनीत, एवरीबॉडी वाज सो सपोर्टिव. क्या होता है ना, जब जोया, जब आप सच्चाई के साथ काम करते हो और जब टीम अच्छी होती है, हंसी मजाक चलता है, सबके चेहरों पे स्माइल्स रहती है ना, तो चीजें अच्छी निकल के आती हैं. ऐसे ऐसे इस टीम के. यस यस. ओके, कभी सर लाइक 6 मई को रिलीज होने वाला है, तो नर्वसनेस है या एक्साइटमेंट है, क्या कुछ फीलिंग्स है, बटरफ्लाई सी स्टमक, क्योंकि फैंस तो ऑलरेडी ट्रेलर को ट्रेंडिंग बनाए रखे हैं, बट एनी सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स उसमें थे जिसमें रामानंद सागर जी के रामायण से कंपेयर किया जा रहा था, तो एनी सॉर्ट ऑफ नर्वसनेस और कुछ? यार मैं नर्वस नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है जोया. और मैंने अपना काम, आई नो वन थिंग दैट मैंने अपना काम सच्चाई के साथ किया है. एंड मैं आई न्यू कि मैं 18-19 दिन मॉरिशस में था, तो मैंने कैसे तैयारी की थी रावण की, एंड कैसे मैंने डायलॉग डिलीवरी की है अपनी, कैसे अपनी परफॉर्मेंस रखी है मैंने, तो मैंने बहुत सच्चाई के साथ काम किया. आई एम श्योर पीपल गोना एक्सेप्ट दिस न्यू गाय. मैं बॉलीवुड के लिए तो नया हूं ना, मैं मतलब साउथ में काम किया मैंने 39-40 फिल्म के, दैट डिफरेंट. वो टीवी पर चल रही है वो अलग बात है, बट मैं हिंदी सिनेमा में अब मैं आ रहा हूँ, तो आई एम श्योर पीपल विल लव इट. एंड सी, पहले रामानंद सागर की जो रामायण थी, कहानी तो वो सेम है इसकी, रामयुग की कहानी हो चाहे रामायण की कहानी है, हमारी हिस्ट्री कोई नहीं बदल सकता. क्या हमारे दादा दादी को, नाना नानी को कोई बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता. सो हमारी हिस्ट्री कोई नहीं बदल सकती. इट्स जस्ट कि थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया गया है, थोड़े वीएफएक्स आ चुके हैं. पहले इतना वीएफएक्स नहीं होता था. पहले जब हमारी नानी दादी जो होती थी वो उनको कहानी सुनाती थी रामायण, तो हम उनको महसूस करते थे. हमने कभी देखा नहीं था कि अच्छा पुष्पक विमान होगा, अच्छा रावण ऐसे सीता मैया को लेके आए. अब क्या है कि हम वो पुष्पक विमान, वो मेरा पुष्पक विमान है, दिखेगा लोगों को. सो अब बच्चे जो आज के जनरेशन है वो देख सकते हैं कि हाँ वो पुष्पक विमान ऐसा था, ऐसे हरण हुआ सीता मैया का, ऐसे राम जी ने वध किया. तो अभी आई थिंक वो भी बच्चे बहुत इंजॉय, मेरे ख्याल से जो मेरा दिल कहता है कि ये इस समय एमएक्स वालों ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और अच्छी तरीके से रिलीज हो रही है. फ्री, मतलब फ्री चीजें हैं, तो पूरी इंडिया देखेगा. एंड जो अभी बाहर सिचुएशन चल रही है, टू बैड. तो क्या ये रामयू की एक ऐसी सीरीज है जिसको दुनिया साथ में बैठ के देखेगी यार जोया, जिसमें दादा दादी बच्चे सब बैठ के पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी मिलेगी उनको. सो आई एम श्योर पीपल गोना वॉच इट. और वो जो हल्के फुल्के नेगेटिव कमेंट्स हर जगह रहते हैं यार, तो प्यार भी यही लोग करते हैं यार, प्यार भी यही लोग करते हैं, कोई बात नहीं, ये सब चलता है. ओके, इसके अलावा बोलिए चूड़िया भी ट्रेंड कर रहा है, तो उसके बारे में बता दीजिए, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस नवाज तमन्ना के साथ काम करके? नवाज भाई इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स. ही हिमसेल्फ एक्टिंग स्कूल, बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं उनके साथ 45 डेज था आई थिंक. सो मैं अपनी लाइफ में 3 एक्टर्स के साथ काम करना चाहता था, नवाज भाई, इरफान भाई एंड मनोज भाई. मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ ये बात. इरफान भाई हमारे बीच में नहीं है, सो मनोज भाई रह गए हैं, नवाज भाई का काम हो गया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला. एंड व्हेन यू सराउंड विद गुड एक्टर्स ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी निकलती है. मैंने कभी थिएटर नहीं किया है, मैंने साउथ की एक्टिंग बहुत अलग है. एंड यहाँ पर जब आप नवाज भाई, आदित्य श्रीवास्तव, राजपाल यादव, ऐसे एक्टर्स के मंजे हुए कलाकारों के काम करते हो, तो आप में बहुत चीजें बदल जाती हैं. आप भी होता है कि ओ, से मैं इनको नोटिस करता था. ऐसा नहीं कि मैं अपने सीन्स कर रहा हूँ, मैं दूर से देखता था कि हाँ नवाज एंड राजपाल भाई का सीन चल रहा है, नवाज भाई राजपाल भाई का सीन चल रहा है, या आदित्य श्रीवास्तव सर का सीन चल रहा है. तो आई यूज टू सी एक्टिंग. आप जिंदगी भर सीख सकते हो. आप जिस दिन आपने ये बोल दिया कि ओह मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ, तो उस दिन आप खत्म हो जाओगे. सो एक्टिंग आप जिंदगी भर सीख सकते हो. तो सो इट वाज फैबुलस वर्क विद नवाज भाई, शमाज भाई. एंड अच्छी फिल्म है, कमर्शियल फिल्म है. मैं पहली बार, मेरी इन 40 फिल्मों में इकलौती ऐसी फिल्म है जहां पर मैं विलन नहीं हूँ. एक गाना भी रिलीज हुआ मेरा जहां पर मैं एंजॉयिंग दैट सॉन्ग, मैं अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे गया हूँ. सो वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया है. सो इसमें मैं रोमांस भी कर रहा हूँ जोया जी,
मैं इसमें कॉमेडी भी कर रहा हूँ और एक्शन भी कर रहा हूँ। जैसे जैसे फिल्म का ग्राफ बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी शेड्स भी डिफरेंट होते जाएंगे। तो ओके, लुकिंग फॉरवर्ड। इसके अलावा कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो पाइपलाइन में हैं, जो अभी डिस्कस हो रहे हैं या? मैंने अभी अपनी पहली इंटरनेशनल फिल्म साइन की है, बांग्लादेश टर्किश कोलैबोरेशन, जो शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है ढाका में 1 दिन का शूट हो चुका है। एंड मेजर स्केड्यूल जो है वो टर्की में है, विच इज आई थिंक 15th मई के बाद स्टार्ट होने वाला है। एंड दैट फिल्म गोना रिलीज इन 80 कंट्रीज। सो आई एम गोना एंटर इन इंटरनेशनल मार्केट नाउ। जो ये फिल्म है इसमें अनंत जलील है, ही इज अ बिग सुपरस्टार ऑफ बांग्लादेश, उनके ऑपोजिट मैं आ रहा हूँ। एंड 50% technicians are from Turkey and 30-40% are from Iran. So it's a big break for me कि मैं अभी इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने वाला हूँ। I'm playing the lead villain and I'm playing the Turkish guy. I'm learning the Turkish का जो इंग्लिश स्लैंग होता है ना, that अगर आपने नेटफ्लिक्स पे देखा हो तो वो कि I don't know what you're talking about, I'm gonna kill you, I'm gonna find you, I'm gonna kill you. So that English I'm gonna say. And आई एम हैप्पी यार, जैसा मैंने प्लान किया था चीजें जैसी प्लान की थी, मॉडलिंग के बाद साउथ एंड देन अप नाउ एंटरिंग टू बॉलीवुड। सो मैं स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ यार, लाइक यू आस्क कि मैंने भी लास्ट वीक में मैंने एक नरेशन ली है। दैट्स इट्स एन एक्शन, हार्डकोर एक्शन फिल्म। सो जैसी चीजें कंफर्म होंगी वो चीजें बाहर आ जाएंगी। एंड 10 दिन पहले एक उर्वशी के ऑपोजिट मेरा नरेशन ली है, उर्वशी रौटेला की। इट्स अ एक्शन फिल्म, वो भी बाहर सेट है फ्रांस में। सो मैं स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रामयुग टू कम आउट नाउ। क्योंकि क्या होगा ना कि अभी तक दुनिया ने क्या साउथ में देखा है, सो अब उनको ये हो जाएगा कि ओ दिस गाय इज कमिंग टू बॉलीवुड नाउ एंड ही प्लेड रावण। सो अभी तक क्या बहुत लोगों ने ट्रेलर देखा भी नहीं होगा, तो जो देख रहे हैं वो मैसेज कर रहे हैं। इंडस्ट्री देखेगी जैसे चीजें एपिसोड्स बाहर आ जाएंगे, सो पीपल गोना वॉच इट एंड एक होता है ना, लोगों का नजरिया चेंज होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये फिल्में हैं यार अभी, और साउथ की तो फिल्में हैं चल रही हैं, लाइक 2 तमिल फिल्म्स, 1 तेलुगु फिल्म एंड 2 कन्नड़ा फिल्म्स। सो वो चीज है, बट वो डबिंग जब एक बार लाइनअप है यार। लाइक आई सेड, आई एम ग्रेटफुल कि ऑल थैंक्स टू गॉड कि चीजें होती गई। आई एम जस्ट फोकस्ड माय वर्क। मेरे घर वालों ने एक बात बोली है जोया जी हमेशा कि चाहे 100 फिल्में कर लो चाहे 200, कभी सक्सेस को सर पे मत चढ़ने देना। तो आई एम जस्ट व्हाटएवर माय डैड सेइंग, सो मैं उन चीज को अमल करता हूँ चीजों को। एंड अभी रामयुग होने वाली रिलीज यार, लेट्स सी, आई एम हैप्पी। ओके कबीर सर, लास्टली कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, क्योंकि काफी डिप्रेसिंग माहौल हो चुका है अभी फिलहाल इंडिया में, और काफी लोग सफर कर रहे हैं इन दौरान। एनीथिंग यू वांट टू से टू ऑल द फैंस? इसी के उसमें एक बहुत ही पावरफुल आप कहानी लेकर आ रहे हैं रामयुग, तो कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को? सी आई जस्ट वांट कि जस्ट आप लोग घर पे रहो यार, जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ। अगर बाहर जाना जरूरी नहीं है तो डोंट गो आउट, और अगर जा रहे हो तो वेयर दैट मास्क एंड सैनिटाइज करो हैंड्स को। एंड अभी क्या है कि जो घर है ना आपका, जो होम इज, दिस इज योर शील्ड। सो यही आपकी रक्षा, यही आपका रक्षा कवच है। अभी रामयुग रिलीज हो रही है, सो जस्ट ये रामयुग आपको उन्हीं दौर में ले जाएगी जो हम बचपन में सुनते थे, ये उसी ले जाएगी उस में। एंड आई एम श्योर दिस रामयुग गोना गिव पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ टू द फैमिलीज एंड पीपल गोना एंजॉय इट। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव जो इस विलन को प्यार मोहब्बत दी है पिछले 5 सालों में, तो वही अब बॉलीवुड में भी आ रहा हूँ मैं। सो वो प्यार मोहब्बत बनाए रखो यार। बाकी थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much, Kabir. So it was amazing having a conversation with you. Hope आपने भी Same enjoy किया interview. Same here, Zoya. Same here. It was lovely talking to you. Thank देखो you जब so much. जर्नलिस्ट अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी होती है। It was a Thank you. candid interview. चलो प्लीज आप ख्याल रखिए अपना। आप भी इसका ख्याल रखो। Take care. Have a good day, Thank you. sir. Bye.